السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کو گوداوری سے 20 TMC پانی لانے حکومت کا منصوبہ۔ پوچمہ ملنا ساگر سے پانی کے حصول کے لیے جامع رپورٹ تیار کرنے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ نے دی ہدایت۔ کوڑنگل میں فارماسٹی نہیں، انڈسٹریل کوریڈور قائم کیا جا رہا ہے۔ قائم کی جانے والی صنعتیں آلودگی سے پاک ہوں گی۔ بائیں بازو وفد سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ملاقات۔ کانگریس کے جھوٹ کے باوجود مہاراشٹر میں ڈبل انجن سرکار۔ ریونت ریڈی نے جہاں مہم چلائی وہاں کانگریس کو شکست۔ کشن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ اور حبشی گڑھا میں آنکھوں کے آپریشن کے لیے لائی گئی 5 سالہ لڑکی ڈاکٹرز کی مبینہ لاپرواہی سے فوت۔ میاں پور میں انٹر کے طالب علم کی خودکشی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے پینے کے پانی کی ضروریات کے لیے گوداوری سے 20 TMC پانی لانے کا منصوبے کا جائزہ لیا۔ جوبلی ہلز میں ان کی قیام گاہ پر محکمہ آبرسانی اور آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو کنڈا پوچمہ اور ملنا ساگر پروجیکٹ سے پانی کے حصول پر ایک جامع رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی دستیابی کے بارے میں مکمل جائزہ لیا جائے۔ یہ بھی کہا کہ کس پروجیکٹ سے کتنا پانی حاصل کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 1 دسمبر کو اس کے ٹینڈرز کے طریقہ کار کو وضع کریں۔ انہوں نے کہا کہ مشن بھگیرتا کے عہدیداروں سے تال میل کے ساتھ کام کریں۔ اجلاس میں محکمہ بلدیہ کے پرنسپل سیکرٹری دانا کشور، واٹر بورڈ کے MD اشوک ریڈی کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी हुकूमत की 1 साल की तकमील पर तकरीबात के हिस्से के तौर पर 30 नवंबर को महबूबनगर में मुनक्किद होने वाली किसान कॉन्फ्रेंस पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव भी इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंतजामात करें ताकि रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा किसान महबूबनगर में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए ज़रूरी इंतजामात किए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि महबूबनगर किसान इजलास को पब्लिक मीटिंग के तौर पर नहीं बल्कि किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए कॉन्फ्रेंस के तौर पर मुनक्किद किया जाना चाहिए। काश्तकारों को ज़राअत में जदीद काश्त के तरीक़ों और तकनीकों से आगाह करने के लिए महकमे ज़राअत, महकमे बागबानी और महकमे हैवानात की ज़ेर-एहतमाम स्टॉल्स का एहतमाम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि यूनिवर्सिटी में तैयार करदा तुखम, ऑयल फार्म कंपनियों की नई इजादात और मुख्तलिफ कंपनियों की इख्तराई मसनूआत जो किसानों के फ़ायदे के लिए दस्तयाब हुई हैं को यहाँ के स्टॉल्स में रखा जाए। उन्होंने कहा कि जदीद आलात, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, ड्रोन सबको वहाँ तजुर्बाती मुजाहरे के लिए तैयार रखना चाहिए। वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि महबूबनगर में किसानों का इजलास 3 दिन तक मुनक्किद किया जाए ताकि तमाम किसान 30 तारीख को मीटिंग में आकर किसानों में बेदारी पैदा करें। उनका कहना था कि ये स्टॉल 28 तारीख से दस्तयाब कराए जाएं। इसके अलावा वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि वो इस कॉन्फ्रेंस को खुद उनकी बेदारी में इजाफे के लिए भी समझें। इस इजलास में आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोडंगल में कोई भी फार्मासिटी कायम नहीं की जा रही है। सेक्रेटेरिएट में बाएं बाजू जमातों के नुमाइंदों से वज़ीर आला ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कोडंगल में कोई फार्मासिटी कायम नहीं की जा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया जा रहा है। हुकूमत का इरादा साफ है, नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार फराहम करना है। वज़ीर आला ने कहा कि वो अपने हलक़े की आवाम को क्यों परेशान करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस इलाके में आलूदगी फैलाने वाली सनतें कायम नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आराजी के मुआवजे में इजाफे पर गौर किया जा रहा है। इस मौके पर बाएं बाजू जमातों के वफ़द ने लागचरला मामले पर वज़ीर आला को याददाश्त पेश की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरीके से गलत प्रोपेगेंडा करने के बावजूद डबल इंजन सरकार के वोट और सीटों में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाकर कांग्रेस ने इजाफा नशिस्तों पर पार्लियामेंट इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ज़हनी हालत बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन का ओहदा भी हासिल नहीं हुआ है। ज़बान, इलाके, मजहब, फ़िरक़े के नाम पर बांटने की कोशिश करने वाली कांग्रेस को सबक सिखाया है। बीजेपी महाराष्ट्र में तीसरी बार इख्तिदार में आई है। कांग्रेस पार्टी 3 रियासतों तक महदूद होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जहां पर मुहिम चलाई थी वहां पर कुछ फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने जहां मुहिम चलाई और जहां कदम रखा वहां पर कांग्रेस नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को शिकस्त देने के लिए अवाम ने 6 गारंटियों को कामयाब बनाया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि महाराष्ट्र की अवाम ने कांग्रेस के 5 गारंटियों पर भरोसा नहीं किया है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने जो धोखा दिया है महाराष्ट्र की अवाम ने देखकर उनको सबक सिखाया है। तेलंगाना में खवातीन को 2500 रुपए देने की लक्ष्मी स्कीम पर अमल नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र में 3000 रुपए देने का ऐलान किया था। रैतु बंधु, किसानों के कर्ज मुआफी और आसरा वज़ाइफ में इजाफा 1 साल मुकम्मल होने पर भी इस पर अमल नहीं करने से महाराष्ट्र में कांग्रेस को नुकसान हुआ। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी पार्टी हेमंत सोरेन के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड की आवाम ने इसका जवाब दिया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हल्के मालेगांव से मजलिस के उम्मीदवार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कामयाब हो गए हैं।
انہوں نے اپنے قریبی حریف آصف شیخ رشید کو 1200 ووٹوں کی اکثریت سے شکست دے دی۔ اورنگ آباد ایسٹ کی نشست سے مہاراشٹرا مجلس کے صدر امتیاز جلیل محض 1000 ووٹوں کے فرق سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اورنگ آباد سینٹرل اور شولاپور سے مجلس کے امیدواروں نے بہترین مظاہرہ کیا لیکن ناکام رہے۔ البتہ مجلس کے ووٹوں کے تناسب میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کی رکن کونسل کے کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ہاسٹلز میں سمیت غذا سے ہلاک ہونے والے 42 طلباء کے افراد خاندان کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ نمس ہاسپٹل میں زیر علاج طالبہ شلیجا کی عیادت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے حکومت ضروری اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ عادل آباد تا عالمپور تک سرکاری اسکولز میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست بھر میں اسکول نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت بن کر 11 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن حکومت کی لاپرواہی سے 42 طلباء کی زندگی چلی گئی۔ پورے تلنگانہ بھر میں جتنے بھی گورنمنٹ گروکلا آشرم اسکولس ہے، ٹرائبل ویلفیئر مائنورٹی ویلفیئر اسکولس ہے، ہر ایک اسکول میں یہ پچھلے 11 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 10 دن میں ایک لڑکا یا لڑکی کا انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو رہا ہے، موت ہو رہی ہے، اور ان سب کا ریزن فوڈ پوائزننگ ہے۔ جو کوالٹی آف فوڈ مائنورٹی ویلفیئر اسکولس میں، ٹرائبل ویلفیئر اسکولس میں دیا جا رہا ہے وہ بالکل ہی گر گیا ہے، گر چکا ہے۔ اسی لیے آج چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کا جان گنوا رہے ہیں۔ میں یہ سرکار سے ڈیمانڈ کرتی ہوں، آپ امیڈیٹلی ریویو کیجئے کوالٹی، یہ جو بچوں کے لیے کھانا دیا جاتا ہے مائنورٹی ویلفیئر اسکولس میں، اس کا کوالٹی بڑھائیے۔ جو کے سی آر صاحب کے سمے میں آپ نے دیکھا، کے سی آر صاحب خود ریویو کرتے تھے، بچوں کو جس طریقے سے کھانا ملتا تھا وہ خود بخود ریویو کرتے تھے، اور اس سمے میں ایسا حال تھا کہ بچے ہمارے آئی آئی ٹی میں جا رہے تھے، آئی ایم میں جا رہے تھے، لیکن آج ایوریج 10 دن میں ایک بچی یا بچے کا موت ہو رہا ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ، سو وی ڈیمانڈ دا گورنمنٹ ٹو امیڈیٹلی ٹیک ایکشن۔ بہت کریٹیکل ہے پیشنٹ کا کنڈیشن، آلموسٹ کوما میں ہی ہے، اور ہم دعا کریں گے جلد سے جلد بچے اچھے ہو جائیں۔ تھینک یو۔ مرکزی و مملکتی وزیر بی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ میں عوام بہت جلد حکومت کے خلاف پلٹ جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے خلاف بی جے پی جنگ کا اعلان کرنے والی ہے۔ سنجے نے کہا کہ مہاراشٹر میں کانگریس کی جو حالت ہوئی ہے وہ تلنگانہ میں ہوگی۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے جھوٹ پر بھروسہ نہیں کیا ہے۔ مودی کے ترقی منتر نے کام کر دیا ہے، گزشتہ کے مقابلے زیادہ اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جہاں مہم چلائی وہاں پر کانگریس کو شکست ہوئی ہے۔ بی سنجے نے کہا کہ ذات پات کی مردم شماری ایک بوگس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینسل کے ذریعے درخواست کو پر کر کے پن کے ذریعے دستخط لی جا رہی ہے، اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ تلنگانہ کانگریس کے فشریز فیڈریشن کے صدر مٹوسائی نے کہا کہ دن بدن کے ٹی آر کا دماغ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرگس اور شراب کی وجہ سے کے ٹی آر پاگل شخص کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ کے ٹی آر کی باتوں پر ماہی گیر مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر اپنی زندگی میں جھوٹ بولنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا ہے۔ جھوٹ بولنے میں کے ٹی آر اور ہریش راؤ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کے سی آر کے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ توڑنے کی دونوں کوشش کر رہے ہیں۔ بی آر ایس دور حکومت میں مہیلا شکتی کو دی جانے والی سبسڈی میں اضافہ کیا ہے۔ بیمہ اسکیم کے ذریعے 4,16,000 ارکان کی زندگی کو بچانے کے لیے 139 کروڑ روپے پریمیم ادا کیے ہیں۔ اس لیے اندرا ایوارڈ مہیلا شکتی ایوارڈ ملا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے چرلاپلی جیل پہنچ کر پارٹی کے سابق رکن اسمبلی پی نریندر ریڈی سے ملاقات کی۔
वाज़ेह है कि वक़ाराबाद की लगाचरला में कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हुए मुबैना हमले के सिलसिले में नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी डिक्टेटर की तरह हुकूमत करेंगे तो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के भाई की हरासानी से साबिक सरपंच साई रेड्डी ने खुदकुशी की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी क्या बादशाह हैं या शहंशाह हैं, उनके जैसे बादशाह कई आए भी और चले भी गए। वायनाड में प्रियंका गांधी की अक्सरियती वोटों से कामयाब होने पर गांधी भवन में उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और पार्टी के दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। हनुमंतराव ने कहा कि प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मुल्क का दौरा करेंगी तो कांग्रेस इख्तिदार में जरूर आएगी। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के सदर अनवेश रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर हरीश राव ने खम्मम में हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार खो देने के बाद इख्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए मनमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपास की खरीदी 8 बजे क्यों नहीं हुई सवाल कर रहे हैं। अब तक 3,66,140 मीट्रिक टन कपास हुकूमत ने खरीदा है। 7,120 रुपए अकल तरीन कीमत हुकूमत अदा कर रही है। एक हफ्ते में किसानों के खातों में बोनस की रकम जमा की जाएगी। महाराष्ट्र इंतखाबात में मोदी और अमित शाह कामयाब नहीं हुए, अदानी और अंबानी की रकम कामयाब हुई है। जू पार्क से आराम घर तक फ्लाईओवर की तामीर करीबुल खत्म है। इस फ्लाईओवर से मुत्तसिल सड़कों की तोसी और गैर मजाज कब्जों के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से जू पार्क के रूबरू कार्रवाई की गई। दुकानात के सामने जो जायद शेड्स लगाए गए थे, इनको पुलिस की मौजूदगी में मुनहदिम किया गया। जू पार्क के अलावा ताड़बन, बहादुरपुरा और किशनबाग के इलाकों में गैर मजाज तामीरात और कब्जों को भी खत्म करने की मुहिम चलाई जाएगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली चार मीनार मीर जुल्फिकार अली ने चार मीनार के करीब वाक़े चार कमान का दौरा किया, जहां पुलिस ने मजहबी किताबें फरोख्त करने वाले दुकानदारों और हॉकर्स को गिरफ्तार किया था। रुकने असम्बली ने पुलिस के आला ओहदेदारों से मुलाकात की और इन दुकानदारों और हॉकर्स को रिहाई दिलाई। उन्होंने कमान के पास कारोबार करने वालों से कहा कि वो ट्रैफिक पुलिस की दी गई मार्किंग के अंदर ही कारोबार करें और दरमियान में ना जाएं। हालांकि ये इलाका चार मीनार पेडिस्ट्रेशन के तहत सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मख्तस है। यहाँ गाड़ियों की ट्रैफिक की ममानियत है। रुकन असम्बली के दौरे के दौरान एक कमसिन लड़का रोते हुए आया और कहने लगा कि उसके वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुकन असम्बली पुलिस स्टेशन गए, जहां बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक हॉकर को जो फेरी करते हुए अशिया फरोख्त कर रहा था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रुकन असम्बली की मुदाखलत पर पुलिस ने इस शख्स को रिहा कर दिया और इसका सामान भी वापस कर दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सुहेल कादरी और मजलिस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फिकार अली ने हफ्ते को मुगलपुरा डिवीजन की गौस कॉलोनी का दौरा करते हुए पानी की पाइपलाइन के मसले का जायजा लिया। बताया गया है कि नई लाइन बिछाने के बावजूद भी पानी की सरबराही नहीं हो रही थी। इतला मिलने पर बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली को रवाना किया। मीर जुल्फिकार अली ने ओहदेदारों के हमराह दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। ओहदेदारों ने तयख्खुन दिया कि 4 दिन के अंदर मसले की एकसुई कर दी जाएगी। मुताल्लिका कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हलके के दूध बावली डिवीजन में 74 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही VDCC रोड का मुआयना किया।
इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कादर, मजलिस के सरगर्म कारकुन, GHMC के AE MA रहीम और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रोड की तामीर और ड्रेनेज लाइन की तंसीब का रुकन असम्बली ने मुआयना किया। उन्होंने गोला खिड़की, दरगाह सिद्दीक गुलशन, कामाटीपुरा, उमर हशमत मस्जिद, गोल्डन पैलेस लेन, ग्रेस हॉस्पिटल का इलाका, अफजल पान शाप लेन, बंडलागुड़ा इलाकों का भी दौरा करके अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इस्तेफादा कुनंदगों में चेक्स तकसीम किए। इस फंड से 19 लोगों को मजमूई तौर पर 7,51,000 रुपए मालियत के चेक्स हवाले किए गए। इस्तेफादा कुनंदों ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन कौंसिल का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद की ईसामिया बाजार में वाक़ई कदीम मुर्गी मार्केट को मोहरबंद कर दिया गया है। मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन कौंसिल वेंकट बालमूर के अलावा बल्दी ओहदेदारों ने जुमा को ईसामिया बाजार में वाक़ई चिकन मार्केट का अचानक मुआयना किया। मार्केट में नाकिस सफाई इंतजामात और नाकिस हालात को देखते हुए इसे मुहरबंद करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि मुसलसिल ताफुन के फैलाव को लेकर मुकामी अवाम की तरफ से भी इस सिलसिले में शिकायत की गई थी। नीलोफर हॉस्पिटल से एक माह के लड़के का अगवा कर लिया गया। जहीराबाद की साकिन हसीना बेगम इरकान से मुतासरा अपने इस नौमौलूद को दवाखाना लेकर आई थी। इसका इलाज मुकम्मल हो गया था और हफ्ते को ही डिस्चार्ज लिख दिया गया था। नौमौलूद की मां डिस्चार्ज से कबल आरोग्यश्री के काउंटर पर गई थी। इस दौरान नौमौलूद की नानी उसके पास मौजूद थी। एक नामालूम खातून आई। इसने ये कहकर नौमौलूद को उठाया कि इसे इलाज के लिए डॉक्टर लेकर आने कह रहे हैं। इस तरह वो इस नौमौलूद को लेकर गायब हो गई। जब इसकी मां वापस हुई तो इसने बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह पूछी। दवाखाना का इंतजामिया की जानिब से भी पुलिस में अगवा की शिकायत दर्ज कराई गई है। हबशीगुड़ा के खानगी आंखों के दवाखाने में 5 साला बच्ची ऑपरेशन के दौरान फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 5 साला अनोविका को आंख के ऑपरेशन के लिए आनंद अस्पताल में शरीक कराया गया था। अफराद खानदान का यह कहना है कि बेहोशी के इंजेक्शन की मकदार ज्यादा होने की वजह से अनोविका की तबीयत बिगड़ गई और इसकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े को लेकर अफराद खानदान की तरफ से हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया गया। अफराद खानदान का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती, जिससे मासूम बच्ची की मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराने और कसूरवार तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। मियापुर के हुदूद में चैतन्या बॉयज जूनियर कॉलेज के साले अव्वल के तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़ी की शनाख्त विजयवाड़ा के साकिन कौशिक राघवा की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि कौशिक ने हॉस्टल के कमरे में फांसी ले ली। लाश लटकी हुई देखकर साथी तलबा ने इंतजामिया को इत्तला दी और पुलिस को तलब किया गया। हॉस्पिटल ले जाने तक कौशिक की मौत हो चुकी थी। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में शीरकौर बच्चा इमारत की छत से दस्तयाब हुआ है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और बच्चे को पहले मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल आजमपुरा ले जाया गया। ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से चाइल्ड वेलफेयर महकमे को भी इत्तला दे दी गई है। नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज जारी है। बच्चे के माँ बाप का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। हैदराबाद को गोदावरी से 20 TMC पानी लाने हुकूमत का मंसूबा। पोचम्मा मलन्ना सागर से पानी के उसूल के लिए जामे रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को वजीर आला ने दी हिदायत। कोडंगल में फार्मासिटी नहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया जा रहा है। कायम की जाने वाली सनतें आलूदगी से पाक होंगी। बाएं बाजू वफ्द से वजीर आला रेवंत रेड्डी की मुलाकात। कांग्रेस की झूठ के बावजूद महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार। रेवंत रेड्डी ने जहां मुहिम चलाई वहां कांग्रेस को शिकस्त। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हबशीगुड़ा में आंखों के ऑपरेशन के लिए लाई गई 5 साला लड़की डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से फौत। मियापुर में इंटर के तालिबे इल्म ने की खुदकुशी। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।